Good morning, students. Welcome to our online sessions of Science Class 8. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you to do unnecessary, don't go outside your home. Also, avoid to go the spaces where there's so much crowded are there. And if it should be necessary, you have to go outside your home and use the face mask cover. Always take a sanitizer with you. Always wash your hands within 20 seconds. Keep hygiene. Keep the distance between the two persons. And stay home, stay safe. Now, students, I'd like to be discussing about the new topic which we have to start it today. That is the chapter number 4 in your textbook. That is materials, metals, and non-metals. Previously, we were discussing the different terms, but today we are discussing about the terms of chemistry as a part of metals and non-metals. So, first of all, if we have seen around of us, there is lots of substance which should be made by the different objects. Lots of the substances we have seen, like you see the windows, you see the doors, you see the refrigerator, fans, air conditioner, televisions, your drawers, etc. It have to be seen different objects which should be made by the different objects. Now, what are the substances and from what substances they have to be made out? So generally, if we have been classified substances which is available into the atmosphere, they have generally three main portions. One is called metals, one is called non-metals, another is called the semi-metals. That is called the metalloids. So, our element which is available into the atmosphere, generally all the elements which available in a form of free form or maybe in a combined form, it is available into the form of atmosphere or maybe hydrosphere or maybe a lithosphere. They mostly available into the crust of earth as a part of atmosphere के अंदर से कुछ मिलेंगे, hydrosphere water that is supplied as well as the earth they have to be provided different substances. So these are the substances which are being substances the part of metallic substance, non-metallic or semi-metallic. So how we can classify the substance we generally extracted from the crust of earth? They are in the form of metal or maybe a non-metal in a semi-metals. So generally, if we classify that element which is available into the crust of earth, which we have to be extracted, so each and every element have their unique properties. Each and every element they have generally contain the unique properties. Each having their physical property and chemical property. जैसे हम देखते हैं कि each and every student they have their unique property. किसी का हाइट बड़ी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, कोई फैट होता है, कोई थोड़ा सा थीन होता है, कोई फेयर होता है, कोई डार्क होता है, किसी का मेमोरी पावर शार्प होता है, किसी का डल होता है, ऐसे अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। वैसे ही मेटल्स जो सब्सटेंसेस अर्थ के अंदर से हमें मिलते हैं, वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, सेमी मेटल्स को कैसे पता चलते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो जनरली यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन आता है कि अगर हमें मेटल्स और नॉन मेटल क्लासिफाइड करना है, तो एलिमेंट वी हैव टू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव देयर इंडिविजुअल एटॉमिक नंबर। अलग अलग एलिमेंट्स जो हमें मिलते हैं, टोटल 119 एलिमेंट्स जो इसमें से 92 हमें फ्री फॉर्म में मिलते हैं, बाकी हम आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स जो हमें मिलते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट दे हैव दैट यूनिक आइडेंटिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नाउ एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर जनरली रिप्रेजेंट द हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। उस एटम्स के अंदर, उसके जो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सजेस्ट करता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अवेलेबल इनटू द एटम्स व्हिच जनरली डिफाइन द एटॉमिक नंबर। सपोज वहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। सपोज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। So according to the number of protons and electrons which is available in the form of atom, which generally suggests their atomic number, right? So according to the atomic number, अगर हम देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एटॉमिक नंबर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते हैं ना, उसमें 4 अलग अलग तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं, 4 ऑर्बिट्स। इन चारों ऑर्बिट्स को अलग अलग सेल कहते हैं। एक को K सेल, दूसरे को L, तीसरे को N, चौथे को N, ऐसे अलग अलग शेल्स होते हैं। इन हर एक सेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं कि फर्स्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल है तो 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल है तो 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द
कन्फिगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, अगर किसी भी सब्सटेंस का जो आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट के अंदर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आउटर ऑर्बिट के अंदर 1 2 या 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जनरली ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है स्टेबल होने की, उसका ऑक्टेट जो होता है उसके आउटर कन्फिगरेशन को फुलफिल करने के लिए। तो ये 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे आउटर ऑर्बिट में, दे जनरली ट्राई टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने को ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको अगर इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करना है तो किसी को 7 किसी को 6 किसी को 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और कोई भी एलिमेंट इतना इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा। तो रेदर देन इतने इलेक्ट्रॉन को किसी से रिसीव करना, उससे बेटर है हमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उन पे आयन जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव आयन बनता है, और उस पॉजिटिव आयन के एलिमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं, राइट। तो जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो हमेशा प्रॉपर्टी कौन सी गेन करेगा? मेटल की। वैसे ही जिस सब्सटेंस के आउटर कन्फिगरेशन, आउटर ऑर्बिट के अंदर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जिस एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट ऑफ कन्फिगरेशन के अंदर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जनरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको नेगेटिव आयंस कहते हैं, और वो हो जाते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को पॉजिटिव कहते हैं। ये होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं। अब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली सबसे पहले तो हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेटल्स आर जनरली इन अ वेरी हार्ड फॉर्म, दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड मोस्टली दे आर सीन इनटू द सॉलिड फॉर्म। तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जनरली हैविंग इनटू द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, राइट। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव वेरी लस्ट्रस एंड शाइनिंग सरफेस। उनकी जो सरफेस होती है मेटल्स की, दे आर वेरी लस्ट्रस एंड शाइनिंग सरफेस, ये दूसरी उसकी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप दो मेटल्स को आप स्ट्राइक करते हैं, दो मेटल्स अगर एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करोगे तो वो साउंड जनरेट करता है, उसको सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप टेम्पल के अंदर जाते हैं और टेम्पल के अंदर वो जो बेल आप उसको रैंक करते हैं, वो दो मेटलिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब एक्सट्रैक्ट हो गए, जब एक्सट्रैक्ट होंगे तो वो साउंड जनरेट करेंगे, तो क्या होता है? मेटल होता है। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। जब दो मेटल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होंगे और साउंड को जनरेट करेंगे, उस प्रॉपर्टी को सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपके घर के अंदर कोई आयन सब्सटेंसेस हो, दोनों को आप स्ट्राइक करें, आपके घर के अंदर स्पून और स्टील की जो प्लेट है उसको आप स्ट्राइक करेंगे तो साउंड जनरेट होगा, वो क्या है? मेटल से। तो उस प्रॉपर्टी को आप सोनोरस प्रॉपर्टी कहेंगे। ये मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी, मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको मैलेबिलिटी प्रोसेस कहते हैं। अभी मैलेबिलिटी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप उस पर हैमरिंग करके, फोर्स इंप्लीमेंटेशन करके आप उस मेटल के अंदर से थिन फॉइल जैसा सीट को रिमूव कर सकते हैं। थिन फॉइल टाइप ऑफ सीट्स दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द मेटल, उस प्रोसेस को मैलेबिलिटी प्रोसेस कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को आप हैमरिंग करेंगे तो एल्यूमिनियम की छोटी छोटी पतली पतली फॉइल निकलती है। जैसे आप देखिएगा ना कि स्वीट्स के स्टोर पे जाते हैं तो वो एल्यूमिनियम की फॉइल में पैक करके आपको कुछ ना कुछ देता है। तो एल्यूमिनियम की फॉइल क्या होती है? वो मेटालिक सब्सटेंसेस होती है और ये मेटल में से डिराइव होती है बाय द हैमरिंग, जिसको आप क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस आती है जिसको ड्यूक्टिलिटी प्रोसेस कहते हैं। अब ड्यूक्टिलिटी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मेटल्स के अंदर से हम वायर को ड्रोन कर सकते हैं, मेटल में से वायर को ड्रोन कर सकते हैं। जनरली अगर आप देखें तो मेटल्स जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस मोस्टली वायर प्रिपरेशन में यूज होते हैं। ठीक है, मेटल्स को ड्रोन करके अगर आप वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को ड्यूक्टिलिटी प्रोसेस कहते हैं। जनरल एक सर्कमस्टांसेस में एग्जांपल दो तो 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड के अंदर से मिनिमम 2 किलोमीटर तक वायर को हम डिराइव कर सकते हैं, तो वो उसकी ड्यूक्टिलिटी प्रोसेस होती है। जनरली इसमें एक और प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की जनरली एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट जो है वो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होती है। उसके अलावा देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ऐसे सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं।
यानी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इसीलिए उसको कंडक्टर कहा जाता है। सो मेटलिक सब्सटेंसेस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इससे एग्जांपल दें तो मेटल्स के थ्रू अगर दो वायर को कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं और बल्ब को स्पार्क करेंगे तो इजीली को इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो मेटलिक सब्सटेंसेस जनरली having to provide as a part of the good conductor of electricity, right? So these are the general physical properties of metal. कि मेटल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ड्यूक्टरेटिव प्रोसेस होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ये सारे प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, शाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सारे सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं, मेटल्स के अंदर आते हैं। मेटल्स के अंदर एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, वो है मर्क्यूरी। एक्सेप्शनल है, मेटल्स के अंदर एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो हमें लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मेटल्स आर जनरली इन फॉर्म ऑफ सॉलिड बट मर्क्यूरी इज जनरली सीन इन द लिक्विड फॉर्म। उसके अलावा एक और सब्सटेंस मैंने बोला था कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बट जैसे सोडियम और मैग्नीशियम ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर इजीली कट विद द नाइफ से उसको कट भी कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, अपनी सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। नॉन मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं तो नॉन मेटलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ब्रिटल है, लेकिन उसमें भी एक सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो नॉन मेटलिक सब्सटेंस में आता है। उसके अलावा नॉन मेटल का जो सरफेस होता है वो लस्ट्रस सरफेस नहीं होता है, लेकिन उसमें भी एक आयोडीन है, आयोडीन जो है वो लस्ट्रस सरफेस को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, ठीक है। इन दोनों को स्ट्राइक करने का साउंड जनरेट नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाए। जैसे वुड है, वुड को वुड के साथ स्ट्राइक करोगे तो साउंड नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, वुड अगर है और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहोगे तो पास नहीं होगा। उसके अलावा इसमें किसी भी तरह का सोनरस प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों को स्ट्राइक करोगे तो भी साउंड जनरेट नहीं होगा। ये सारे प्रॉपर्टी, हाँ ये जो नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं वो तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जो है वो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है नॉन मेटालिक फॉर्म में, राइट। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी होती है? नॉन मेटल्स की। तो दीज आर द जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो वो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी हाई नहीं है, सोनरस प्रॉपर्टी नहीं है। उसके अलावा उसका दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, ये सारे जो फॉर्मेशंस आते हैं वो नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस के बारे में आते हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद वो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो तीन अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड। तो अगर मेटल से नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस अगर रिएक्ट करते हैं तो परफेक्टली अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानना है कि मेटालिक सब्सटेंस है नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता ना चलता हो तो वी हैव टू बी अप्लाई द केमिकल प्रॉपर्टी। सो बाय यूजिंग द केमिकल प्रॉपर्टी वी कैन इजीली एग्जामिन थ्रू द सब्सटेंस व्हिच इज इन अ फॉर्म ऑफ मेटल और व्हिच इज इन अ फॉर्म ऑफ नॉन मेटल। सो पहली जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपके इसके साथ, दैट इज मोस्टली विद द ऑक्सीजन। पहला केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन देखो अलग अलग चीज में यूजफुल है। ऑक्सीजन मोस्टली कंबंशन प्रोसेस में यूजफुल होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूजफुल होता है और मेटल के ऑक्साइड फॉर्म के लिए यूज है। अगर हमें ऑक्साइड फॉर्म चाहिए देन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो मेटल्स या नॉन मेटल्स कोई भी दोनों सब्सटेंसेस में से अगर कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है वो हाईली एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये जो सब्सटेंसेस है ऑक्सीजन, अगर आप इसके साथ किसी भी तरह के रिएक्शन को करते हैं ऑक्सीजन का, तो वो हमेशा उस सब्सटेंस का ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा ऑलवेज। अगर आप मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, अगर नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड के लिए मेटल्स में हम लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है सोडियम। सोडियम क्या आपका मेटल है, राइट। सोडियम का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो Na2O सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम क्या है मेटल है, कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मोस्ट ऑफली व्हेन वी रिएक्ट विद एनी मेटल टू द ऑक्सीजन it always produce its oxide form, right? Similarly, if we react with the oxygen
oxygen with the non-metal, it generally produces its non-metallic oxide, like carbon plus oxygen, carbon dioxide, sulfur plus oxygen, sulfur dioxide, etc. तो ये जो सब्सटेंसेस होंगे हमेशा ऑक्साइड बनाएंगे, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड व्हाटएवर, पर हमेशा उसका ऑक्साइड फॉर्म देंगे। एक चीज सिंपल याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में कि when the metals and the non-metals always whenever required with the chemically to the oxygen, it always will produce its oxide form, right? अभी इसी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर इसी ऑक्साइड के फॉर्म का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करते हैं, अगर यही ऑक्साइड का फॉर्म है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्म हो या नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्म हो, इसका रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करते हैं तो क्या होता है? तो जनरली मेटल ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस बनाता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने पे एसिड बनाता है। ये लैब के अंदर प्रैक्टिकल आएगा, एसिड बेस की जब चैप्टर आती है तब, कि व्हेन वी फॉर्म द एसिड और व्हेन वी फॉर्म द बेस, तो ऑलवेज विद द मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट विद द वाटर, सोडियम ऑक्साइड Na2O, sodium oxide is a metallic oxide that react with the water H2O, always will form its basic form, that is called sodium hydroxide। तो कभी भी मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बनाएगा। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बनाएगा। जैसे SO3 है, वो रिएक्शन वाटर के साथ H2O के साथ करो तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो एटसेट्रा इसी तरीके से हम एसिड बेस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि सोडियम जो है, अभी मोस्ट ऑफली जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो तीन तरह के वाटर्स होते हैं, या तो मेटल या नॉन मेटल। तो मैंने मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पे बेस या एसिड मिलेगा। लेकिन अगर मेटल या नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस को वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? तो देखो मेटल या नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो तीन तरीके के वाटर फॉर्म होते हैं, एक तो कोल्ड वाटर, एक तो हॉट वाटर और एक वाटर वेपर जिसको स्टीम कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सोडियम जो है ये काफ़ी, सोडियम और पोटेशियम में दो जो है काफ़ी वर्गसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्योंकि काफ़ी हैवीली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो ये सब्सटेंसेस को आप कैरोसिन के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी फायर को कैच करते हैं, हाथ में भी मेल्ट होने लगते हैं। आयन जो है, आयन का रिएक्शन वाटर के साथ काफ़ी स्लोली होता है, धीरे धीरे वो रिएक्ट करता है। जैसा कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर अवेलेबल होता है तो आयन के साथ रिएक्ट करता है काफ़ी स्लोली, इसके बाद वो ऑक्साइड का फॉर्म क्रिएट करता है। जनरली नॉन मेटेलिक सब्सटेंस जो है वो वाटर के साथ उतना रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे नॉन मेटल जो है वो वाटर के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस जो है एक तरीके से बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो ऐसे नॉन रिएक्टिव मेटल्स को अगर आप एटमॉस्फेयर में रखोगे ना तो फायर कैच होता है, इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को क्या करना पड़ता है, हमें इसको वाटर के अंदर स्टोर करना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। ये जनरली रिएक्शन होते हैं मेटल्स नॉन मेटल के विद द फॉर्म्स ऑफ वाटर। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। जनरली मेटल्स या नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे मोस्टली हमें क्या मिलता है, मान लीजिए एसिड में H2SO4 है, HCl है, और मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, सोडियम के मेटल को अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, राइट, तो मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो मेटल कंटेनिंग सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल Na इज अ मेटल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन करोगे तो NaSO4 सोडियम सल्फेट दैट इज कॉल्ड सॉल्ट प्लस H2 डाइहाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होगा। तो ऑलवेज मोस्टली यहाँ पे H2SO4 या HCl ये दोनों हाईली रिएक्टिव एसिडिक फॉर्म है, उसके साथ रिएक्शन करने पे हमें H2 मिलता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है, HNO3 के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं मेटल का तो डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि HNO3 के अंदर वो हैवीली ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह काम करता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन एजेंट की जैसे काम करता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस ना होकर H2O वहाँ पर रिलीज होता है। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन होता है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाउ उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जनरली दो मेटल्स जो होते हैं, कोई एक मेटल्स उसमें काफ़ी हाईली रिएक्टिव होगा, काफ़ी लो रिएक्टिव होगा। जब आप दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, जब दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो दोनों मेटल्स में क्या होता है, कुछ जैसे जनरली हमारे पास जो मेटल्स विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ देयर रिएक्टिविटी।
each and every element as a part of metal, non-metal and semi-metal, they have a different their reactivity. According to they have to be reactive some of the materials. So in which some of the highly reactive metals, some of the low reactive metals, some of the middle reactive metals. So it should be classified into the different form of activity series of the metals. Okay. So generally when we compare or we combine metals or non-metals, in which one having a very highly reactive metals, some having very low reactive metals. So by making the chemical reaction between them, the displacement reaction is what? If in a solution of two metallic substances, the higher concentration of metal that can be displaced, the lower concentration of metal from that solution, so that reaction is called as a displacement reaction. तो एक सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए मेरे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसमें Cu मेरा मेटल हो गया, राइट? उसके अंदर मैं सोडियम को ऐड करता हूँ या आयन को ऐड करता हूँ, चलो Fe को ऐड करता हूँ। अभी आयन और कॉपर के अंदर आयन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्या आयन है, आयन इज हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर। तो आयन को अगर आप कॉपर के सॉल्यूशन में रखोगे तो जो कॉपर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कॉपर को उसके अंदर से रिमूव करके उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर से हायर कंसंट्रेशन वाला जो मेटल है उस लो कंसंट्रेशन वाले मेटल को रिमूव करेगा, उस प्रोसेस को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे। जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप जिंक या आयन को किसी को ऐड करते तो कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर अगर आप जिंक को ऐड करोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा और कॉपर जो है वो वहां से रिमूव करेगा तो कलरलेस सब्सटेंसेस हो जाएगा और कॉपर जो है वो रेड कलर को आपको मिलेगा। तो इस रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हाईली रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन में से लो रिएक्टिव मेटल को रिमूव करके उसकी जगह पर खुद डिस्प्लेस हो जाएगा, वो रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनता है, राइट? चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एक और आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ और दो अलग अलग सॉल्यूशन देंगे, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वो 9th स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको समझाऊंगा। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक अबाउट यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का यूज हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स का यूज हम क्या करते हैं? जनरली मेटल्स का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं। वी हैव सीन टू बी डिफरेंट एरियाज लाइक वी हैव टू यूज टू प्रिपरेशन ऑफ मशीनरी प्रिपरेशन में मेटल्स का यूज है, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में मशीन्स का यूज है, एरोप्लेन्स के प्रिपरेशन में, ट्रेन्स के प्रिपरेशन में, सैटेलाइट्स के प्रिपरेशन में, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर या इंडस्ट्रियल गैजेट्स के अंदर, कुकिंग वेसल्स के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, वाटर बॉयलर्स के अंदर, डिफेंस के अंदर, ब्रिजेस बनाने के अंदर, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस जहाँ पे हम मेटल्स का यूज करते हैं। उसी तरह नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल भी एक तरीके से एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। Non-metallic substance is also essential for the making of life as a form of useful. So non-metal is essential in our life, which generally we have to be living beings inhale using the breathing process. Breathing के अंदर भी हम देखते हैं कि कार्बन क्या है, non-metallic substances है, उसका यूज करते हैं as a part of उसमें। फिर फर्टिलाइजर्स भी उसका यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है और कार्बन है, फॉस्फोरस है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। हाइड्रोजन जो सब्सटेंसेस है पार्ट ऑफ नॉन उसका सब्सटेंसेस उसमें भी हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। नॉन मेटल्स जो है वो क्रैकर्स में यूज होते हैं, फॉस्फोरस जो है रेड फॉस्फोरस, उसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम उसका यूज करते हैं। तो ऐसे जो नॉन मेटलिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे डे बाय डे लाइफ के अंदर काफी यूजफुल होते हैं और अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? So I hope the students what we have to be studied about the chapter of metals and non-metals, what is called metals and non-metals, how it can be formed metal and non-metal, what is the physical properties, what are the chemical properties, and what are the uses of metals and non-metals. I hope you can easily understand and study. So I request you keep revising these topics from your textbook and write to answers in your own words. And once again I request you to stay home and stay safe. When we meet tomorrow, we'll be discussing about the next chapter of your syllabus. So students, take care and bye.